بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النساء آیت نمبر 36 to 40. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اور عبادت کرو اللہ کی اور نہ تم شریک کرو اس کے ساتھ کسی کو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور قریبی کے پڑوسیوں کے ساتھ، اور اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ بھی، یعنی حسن سلوک کرو، اور بازو میں بیٹھے ہوئے کے ساتھ بھی، اور راہ چلتے مسافروں کے ساتھ بھی، اور تمہارے نوکر چاکروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہے اسے جو ہو اترانے والا اور فخر کرنے والا. آیت نمبر 37. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویختمون ما آتاهم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، یعنی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، اور وہ چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل سے، بے شک تیار کیا ہے ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے رسوا کن عذاب. آیت نمبر 38. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اور نہیں وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور نہ ہی آخرت کے دن پر، یعنی حساب کتاب کے دن پر، تو جس کے لیے ہو جائے شیطان اس کا ساتھی تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے. آیت نمبر 39. وَمَاذَا عَلَيْكُمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. اور کیا ہو جاتا انہیں اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر،
اور خرچ کرتے، یعنی دوسروں کی ضرورت میں خرچ کرتے۔ اچھا، اس میں سے جو دیا انہیں اللہ نے، اور ہے اللہ ان کی حرکتوں کو خوب جانتا۔ آیت نمبر 40، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا ہے کسی پر ذرہ برابر بھی، اور اگر ہو کوئی نیکی اللہ بڑھا چڑھا کر دے گا اسے، اور دے گا اپنے پاس سے اجر بڑا، انشاءاللہ۔ دیکھیں، ادھر سے ادھر مت کریے، یہ ساری چیزیں ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بالکل بھی اپنے آپ میں ایک صبر رکھیے۔ دیکھیے، جہاں پر انسان 2-4 وقت کا کھانا ہضم کر جاتا ہے، کیا 2-4 باتیں ہضم نہیں کر سکتا کسی کے لیے؟ سیکھ یہ نصیحت اپنے بچیوں کو، اور خود بھی اس نصیحت کو لیجیے۔ اب سبحانہ تعالیٰ جو ہے، دیکھیے آگے کی آیت نمبر 37 میں کیا بتا رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اب ٹھیک ہے، جو بھی یہاں پر حکم دیا گیا ہے، اب اس کے بعد آگے کے جو احکامات بتائے جا رہے ہیں، تو یقین کریے کہ جس انسان کے اندر یہ کوالٹیز ہوگی تو وہ سارے رشتے ناطے بہت اچھے سے نبھا لیتا ہے۔ دیکھتے ہیں وہ کیا کوالٹیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ یہاں پر آرڈرز دے رہے ہیں ہمیں، تو یہ میں چیک کروں، آپ بھی چیک کریے کہ کیا میرے اندر یہ باتیں ہیں۔ جو باتیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم اس پر جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر اس 36 آیت پڑھ کے مجھے ایسا لگا یہ 36 آیت، یہ آیتیں تو الحمدللہ مجھے اس قدر اچھے سے یاد ہے، کیونکہ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ فرسٹ ٹائم جب میرا ایگزام ہوا تھا، جب میں نے سیکھا تھا فرسٹ ٹائم، بالکل 2010 اور 11 کی کچھ بات ایسی، تو یہ آیتیں مجھے ایگزام میں دی گئی تھی کہ آپ سمجھائیے کھڑے ہو کر۔ اس وقت تو خیر جو سمجھ میں آیا سمجھا دیا، ایسا تھا اتنے اچھے سے تو خیر نہیں ان ڈیٹیل اتنا سمجھا پائے تھے، کیونکہ لفظی ترجمے کا ایگزام تھا، اور ایسا تھا کہ میری سپیڈ بہت زیادہ تھی۔ اب ذرا ٹھہراؤ آ گیا ہے میری بات میں، نہیں تو میں بہت سپیڈ میں بولتی تھی، ایسا تھا۔ تو الحمدللہ ایسا ہوا کہ تلاوت وغیرہ سلو ہو گئی، تو بات کرنے کا انداز بھی بہت سلو ہو گیا ہے الحمدللہ۔ تو یہ آیتیں مجھے دی گئی تھی، تو اتنی سپیڈ میں نے سمجھایا تھا کہ 5-6 آیتیں جو ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 5-6 منٹ بھی نہیں لگا تھا، اور ایک دم فل اینڈ فائنل ایسا ہو گیا تھا۔ تو اس لیے کچھ آیتوں کے نمبر کبھی کبھی ذہن میں رہ جاتے ہیں، کچھ ایسے واقعات جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ بہت خوبصورت آیت ہے، یہ چیک کرتے ہیں ہم 37 اور 36 انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو کرنی ہے وہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور نہیں تم شریک کرو اس کے ساتھ کسی کو بھی۔ دیکھیے یہاں پر کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے پہلے حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو بندہ دیکھے کہ جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا ہے، تو الحمدللہ وہ عرش والے پر جب کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، تو وہ فرش والے پر بھی کسی کے ساتھ شریک نہیں کرتا ہے۔ جو عورتیں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتی ہیں، تو وہ اپنے شوہر کی محبت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتی ہیں۔ وہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ ان کے دل میں ان کے شوہر کی محبت کے علاوہ کسی اور شخص کی محبت جو ہے وہ بیٹھے۔ اس کا تعلق بہت گہرا ہے۔ اور جو لوگ جو ہے وہ الا ماشاء اللہ، میں یہ نہیں کہتی کہ سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بالکل عبادت میں اس کے شریک ٹھہراتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں انسانوں کی محبت میں بھی کسی نہ کسی کو شریک کر دیتے۔ تو اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے سمجھنے کی کوشش کریے۔ سب سے پہلا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اس کی عبادت کرتے رہو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرو۔ دیکھیے آپ کو حیرت ہوگی، مجھے نہیں پتا آپ لوگ غور کرتی ہیں کہ نہیں، اتنی لمبی آیت ہے یہ، آیت نمبر 36 اور 37، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں صرف اتنی سی بات بول کر جو ہے وہ ختم کر دی۔ لیکن جہاں حقوق العباد کی بات آتی ہے تو کتنی لمبی لسٹ ہے، دیکھیے ذرا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي قُرْبَىٰ، اور والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اچھا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں پر دیکھیے کہ آپ کے پیرنٹس ٹھیک ہے آپ کے ساتھ کچھ بھی کرتے، آپ کو ان کے ساتھ احسان کا تعلق رکھنا ہے۔ احسان کا تعلق رکھنا ہے یعنی کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا ہے، بالکل ان کے ساتھ غلط سلوک نہیں کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ دیکھیے کہ
احسان کا تعلق. پھر اس میں سوال آتا ہے کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ جو ہے یعنی کہ سارے فیملی ممبرس ایمان نہیں لے آتے تھے. کچھ لوگ لاتے تھے, کچھ لوگ نہیں لاتے تھے. تو جو لوگ نہیں لاتے تھے تو اب کیا ہے, پیرنٹس تو ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک تو کرنا ہے. تو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جوز ازواج مطہرات میں سے ایک جو ہے وہ ام سلمہ جو ہے وہ ان کی امی ایمان نہیں لے آئی تھی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزیت میں آئی, وہ ایمان لے آئی. تو کبھی ان کی امی جو ہے وہ مشرک تھی, تو انہوں نے پوچھا کہ کیا میں اپنی امی سے مل سکتی ہوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرو اس طریقے سے. اب یہاں پہ دیکھیے احسان کے سلوک میں ساری چیزیں آتی ہیں. اگر وہ ایمان نہیں لے آئے ہیں, وہ ابھی شرک پر ہے یا کفر پر ہے, ان کی جو بھی ڈیزائر ہے, ان کی جو بھی ضروریات ہے, وہ آپ کو بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. وہ توحید پر نہیں ہے, وہ الگ میٹر ہے. کیوں؟ کیونکہ توحید پر ہونا نہیں ہونا دیٹ از حقوق اللہ. حقوق العباد میں سے آپ کو ان کے ساتھ جو احسان کا سلوک کرنا ہے, وہ شرک کر رہے ہیں, وہ کفر پر ہے, وہ سارا میٹر جو ہے حقوق العباد کے ساتھ بالکل نہیں ہے, حقوق اللہ کے ساتھ ہے. وہ اللہ پر ان کا میٹر چھوڑ دیجیے آپ. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ اور ایک صحابی کا آتا ہے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ان کی والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا. انشاءاللہ آگے جا کر اس ٹاپک پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آئی تھنک سو کہ سورہ لقمان میں جو ہے ان کے اس ٹاپک پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت اتاری باقاعدہ کہ اگر تجھے تیرے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, اور اسپیشلی ماں کے ساتھ, کیونکہ اس نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے, بہت مشکل سے تجھے جینا ہے اس نے, اور کبھی ہاں لیکن وہ تیرے ساتھ اگر, اب یہاں پہ دونوں کی بات لی گئی ہے, والدین ماں باپ دونوں کی, تیرے ساتھ اگر شرک کا معاملہ کرے تو بالکل بھی اس کا کہانی ماننا جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے. تو وہ صحابی کا آتا ہے, تو یعنی کہ ان کی والدہ جو ہے وہ نہیں, تم جو ہے ایک اللہ کی بات کرنا چھوڑ دو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو اور ان کی پیروی مت کرو, نہیں تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی, ایسی دھوپ میں کھڑے رہوں گی. تو وہ تو پریشان ہو گئے. جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی کہ یا رسول اللہ, ہم کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پیرنٹس کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں, پھر اب میں کیا کروں؟ تو پھر یہ آیت اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھیے وہ الگ چیز ہے, توحید کا تعلق عباد اللہ سے بالکل نہیں ہے. ارے ہاں, اللہ کے بندوں سے نہیں ہے, لیکن ان کا کہانی ماننا ہے, یہ اللہ نے کہہ دیا ہے. تو دیکھیے کیا پتا چلا, اس سے سلوک کرنا ہے, لیکن آپ کو وہ دین سے ہٹ کر کام کرنے کو بولتے ہیں, دین میں جو چیزیں نہیں ہے وہ کرنے کو بولتے ہیں, تو وہ آپ کو نہیں ماننا ہے بالکل بھی. اور یہی چیزیں بہت زیادہ بنیاد بنتی ہے, ایک دوسرے کے دل میں بہت زیادہ کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے, لیکن آپ کو ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہنا. آپ کو یہ سوچے کہ ٹھیک ہے صرف پیرنٹس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا نہیں, پیرنٹس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ذی القربا رشتے داروں کے ساتھ بھی, قرابت قریبی کے جو رشتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے آپ کو. دیکھیے کبھی کبھی پھر ایسے سوالات بھی آتے, وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرتے, ٹھیک ہے ان کو کرنے دیجیے, آپ کو اپنا حساب دینا ہے, ان کا حساب دینا ہے, تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. والیتامى اور یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, والجار ذی القربى اور قریب کے پڑوسی کے ساتھ بھی جو ہے آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے. یہاں دھیان دیجیے, یہاں پر جو ہے وہ قریب کے پڑوسی مطلب آپ کے جو نیبرس ہوتے ہیں, نیبرس کے ساتھ بھی دیکھیے کتنی لمبی لسٹ ہے حقوق العباد کی. قریبی جو آپ کے پڑوسی ہیں, جو آس پاس آپ کے رہتے ہیں, ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. والجار الجنوب اور اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ. آپ میں سے کوئی بتائے گا مجھے یہ اجنبی پڑوسی کون ہوتے ہیں؟ اجنبی پڑوسی بولے تو کون ہوا؟ جو لوگ مسافر ہوتے ہیں وہ ہمارے شہر میں نہیں ہوتے, جو بس یا ٹرین میں ملتے ہیں. یس, جو آپ اگر سفر میں ہیں تو آپ کے آس پاس میں جو بیٹھے رہتے ہیں, یا سفر میں جو رہتے ہیں وہ یعنی کہ وہ بھی آپ کے آس پاس ہی رہتے نا. فار ایگزامپل راستے میں آپ چل رہی ہیں تو آس پاس میں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دھکے مار کے چلے جائیں گے, ٹپلی مار کے چلے جائیں گے, کبھی ادھر بجا کے جائیں گے, کبھی ادھر بجا کے جائیں گے. تو دیکھیے یہ ان کا حق نہیں ہے, یہ حق نہیں ہے. بلکہ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو دیکھے کہ راستے سے پتھر ہٹانے کو بھی صدقہ کہا ہے. یہ لیسن, یہ تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو دی. اور آج امت محمدیہ میں سے کچھ مسلمان ہی ایسے ہیں جو لوگوں کو پریشان کرتے.
इस तरीके से रास्ता रोक देंगे, गाड़ी कहीं भी पार्क कर देंगे, आने जाने में लोगों को परेशानी होती है। मैं अक्सर देखती हूँ ना, तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि जो सबक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को दे गए, तो ये तो बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं लोग। ये देखिए कि ये हमारे आस पड़ोसी जो हमारे रास्ते में जो मिलते हैं, हमें ये उनका हक है कि हम उनको परेशान ना करें किसी भी तरीके से। वसाहिबी बिल जन्ब, और आपके जो जम किसको कहा जाता है? करवट को कहा जाता है, ठीक है, करवट को कहा जाता है। यानी आपके बिल्कुल बाजू में अगर कोई बैठा है, ट्रेन में आप सफर कर रही हैं, कोई बाजू में बैठा है, किसी मजलिस में आप बैठी हैं, वहां आपके कोई करीब है, तो उसका भी हक अदा करना है। किस तरीके से? ऐसा नहीं है कि बैठे हैं तो धक्का देके उनको बिल्कुल सीट से गिरा दिए, या फिर आप जो है वो उनको परेशान कर रही है, मजलिस में वो बैठी है, किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस, ये बहुत ज्यादा एहतियात करना चाहिए। इतना लाउडली आप अपना मोबाइल बजा रही हैं, या इतना लाउडली आप बात कर रही हैं कि अगले को जो है परेशानी हो रही है, इन सब चीजों पे देखिए हम ध्यान नहीं देते। यानी ऐसा अपने आप को पेश करना है। देखिए ये ऐसे एटिकेट्स हैं कि अपने आप को ऐसा पेश करिए कि लगे कि हाँ वाकई ये अच्छा मुसलमान है। एक मुसलमान जो है वो चलता फिरता जो है वो अपनी अपनी तरबियत को दूसरों के सामने पेश कर सकते। देखिए माउथ पब्लिसिटी या माउथ वाज हम सबके सामने नहीं कर सकते। आओ आओ लोगों, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है, जमा हो जाओ, देन माइक आपने ले लिया और आप एकदम स्पीच करने लगे, नहीं। लेकिन अमलन आप किसी को भी अपना एटिकेट, दीन इस्लाम में क्या चीजें हैं, वो चीजें आप बता सकते हैं। तो इसी तरीके से देखिए कि हुकूकुल इबाद में से पड़ोसी जो अपने मतलब आजू बाजू में मस्जिद वगैरह में बैठते हैं उनका भी है ना। वह बनी सबील, और मुसाफिरों का भी हक है। मुसाफिरों का हक क्या है? देखिए फिर वही बात आपको कहूंगी मैं कि रास्ते में किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल भी यानी किसी भी तरीके से अगर उनको किसी चीज की जरूरत है तो आप उनकी हेल्प कर दो। क्योंकि देखिए सफर में कितना भी अगर समझे करोड़पति आदमी भी है, अगर समझिए उसका सब कुछ चोरी हो गया, तो उस वक्त तो उसका करोड़पति होना उसको बिल्कुल भी जो है वो काम नहीं आएगा, बल्कि उस वक्त भी उसको हेल्प की जरूरत होती है। तो ये उस वक्त जो है एक मुसाफिर का क्या क्या हक बताइए कि किसी भी तरीके से अगर समझिए कि आपको उसके सामान की हिफाजत करनी पड़े तो आप वो भी देख लीजिए, उसको कुछ जरूरत है तो वो भी देख लीजिए। यानी जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि सफर वगैरह में भी काफी जो लोग हैं जैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये देखिए कि ये हुक्म अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में दिया है। चलिए इतने सारे लोगों की बात करने के बाद वमा मलकत ऐमानुकुम, सबसे लास्ट में अल्लाह सुब्हाना ताला ने और तुम्हारे नौकर चाकर के साथ भी तुम्हें हुस्न सलूक करना है। चलिए इतनी चीजें तो अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई भी मान लेता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर देखिए कि जो आपके घर में सर्वेंट वगैरह है, आपको याद है कि बिल्कुल यानी कि जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो डेड बेड पर थे, तो उस वक्त जो है यानी कि उस वक्त जो है यानी कि ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि देखिए नमाज की हिफाजत करना यानी कुछ ऐसे जो मतलब वसीयत की थी, उसमें से एक ये चीज थी कि अपने गुलामों के साथ हुस्न सुलूक करो। सोचिए जरा कितना मतलब अहमियत दी गई है। दीन इस्लाम में सर्वेंट वगैरह को बहुत अहमियत दी गई है, लेकिन कुछ लोग जो है वाकई बहुत ही बुरा सलूक करते हैं, बहुत ही बुरा। तो देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला का हुक्म है, ये अल्लाह के हुक्म को ये मानते हुए अल्लाह का हुक्म है, इस तरीके से आप जब इस पर अमल करेंगी तो इंशाल्लाह बहुत हद तक है कि हमको जो है अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से बहुत ज्यादा अजर सवाब मिले, और उसके साथ साथ अल्लाह के हुक्म पर अमल भी हो जाएगा ना। उसके बाद आखिर में अल्लाह ताला बता रहे इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता है ऐसे लोगों को जो इतराते और फख्र करते हैं। मैं बहुत सोचती थी उस वक्त, तो मुझे खैर ये चीज नहीं समझ आई थी कि आयत के आखिर में अल्लाह ताला क्यों ऐसा बोल रहे हैं। अच्छी खासी बात चल रही थी, हुकूक की बात चल रही थी, यहाँ पर इस आयत का आने का क्या मकसद है? आपको क्या लगता है? आप क्या गौर फिक्र कर रही हैं? आयत के आखिर में इस बात का आना कि अल्लाह सुब्हाना ताला इतराने वाले को और फख्र करने वाले को पसंद नहीं करते हैं, तो बताइए क्या बात हो सकती है? आपका क्या गौर फिक्र है इस पर, बताइए। बताइए आपको क्या सूझ रहा है यहाँ पर इस आयत पर? आ रहा है किसी को जवाब? हाँ सीना बोलो। जो भी चीज हमें मिली है हेलो? वो अल्लाह की तरफ, जितनी भी चीजें हमें मिलती है अच्छा। सब अल्लाह की तरफ से। तो हमको उन चीजों पे हाँ उन चीजों की वजह से इंसान फख्र करता है, घमंड करता है ना।
या तो हस्बैंड हो गया या बच्चे हो गए या दुनियावी नेमत जो हो गई, तो इसलिए उन पे फक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे खुद की तरफ से नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला नाशुक्रे को और फक्र करने वाले को नापसंद करते हैं। वो सब दिया हुआ अल्लाह अच्छा, का ही है। ओके ओके, माशाल्लाह बारकल्लाह फीक। यहाँ पे देखिए बात यहाँ पर है ना, इंसान के अपने आप में हो रही है कि अल्लाह ताला इतराने और फख्र करने वाले को पसंद नहीं करते। जो बात मुझे समझ आई वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। देखिए ये जो सिफत है मुख्तालन फखूरा की, कि इतराने वाला फख्र करने वाला, जब किसी इंसान के अंदर ये दो खसलत आ जाती है, ये दो क्वालिटी अगर किसी के अंदर आ गई ना, तो ये देखिए कि वो ऊपर के जो भी डू एंड डोंट्स अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताए ना, वो नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। यहाँ पर स्पेशली देखो ये बोला गया कि अल्लाह ऐसे लोगों को नहीं पसंद करते हैं। क्यों? इंसान के अंदर अगर फकर और इतराहट होगी तो वो ऊपर जितने भी हुकूक अदा करने को बताए गए ना, सबसे रुक जाएगा। एक ये फकर और इतराहट इंसान को अल्लाह उसके बंदों के हुकूक अदा करने से रोकती है। ये है असल बात, इसको थोड़ा सा तवज्जो दीजिए कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुम ये क्वालिटी अपने अंदर मत रखो, नहीं तो तुम इनके हुकूक अदा नहीं कर सकोगे। आयत नंबर 37, ये देखिए कि अल्लाह ताला बता रहे हैं 36 में, जैसे कि आखिर में है कि अल्लाह ताला नहीं पसंद करते हैं मुख्तालन फखूरा को, कि जिस इंसान के अंदर फखर और इतराने की क्वालिटी होती है तो वो इंसान हुकूकुल इबाद को सही से अदा नहीं कर पाता है, क्योंकि अपने आप में एक बड़ाई महसूस करता है वो। अब देखिए कि मुख्तालन फखूरा, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसको कैसे डिफाइन किया है। तो देखिए कि जब ऐसी किसी क्वालिटी की डेफिनेशन अल्लाह की किताब में आती है, तो मैं और आप अपने आप को चेक करें कि कहीं मेरे अंदर ऐसी कोई खराब बात तो नहीं है, कहीं मेरे अंदर ऐसी कोई बुरी सिफत तो नहीं है, बुरी क्वालिटी तो नहीं है। तो ये मुख्तालन फकूरा कौन है? अल्लज़ीना यबखलूना, अल्लज़ीना यबखलूना, ये वो लोग हैं जो वो क्या करते हैं? बुखल करते हैं, कंजूसी करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, कंजूसी करते हैं, वो यामुरून अन्नास बिलबुख्ल, और वो लोगों को भी कहते हैं कंजूसी करने के लिए, लोगों को भी जो है वो उभारते हैं, लोगों को हुक्म देते हैं कंजूसी करने का। नंबर 1, चेक करिए जरा, कहीं मैं कंजूसी तो नहीं करती हूँ, और उसके साथ साथ मैं लोगों को भी तो कहीं कंजूसी नहीं करने देती। अच्छा बताइए, बखील किसको कहा जाता है, कंजूस किसको कहा जाता है? अल्लाह अकबर, बोलिए, कंजूस किसको कहा जाता है? उससे में भी उतना नहीं खर्चा करना, जी, मतलब उतना माल होने के बाद, मतलब उतना इस्तिताअत होने के बाद भी वो उस तरीके से हक अदा नहीं कर रहा हो। चलिए ठीक है, यानी कि उसके पास से होते हुए भी वो खर्च नहीं कर रहा हो। फिर ये देखिए कि एक ये भी है कि इंसान अपनी जात पर भी अपने माल ना लगाए, तो वो भी बुखल की जो है वो कैटेगरी में जाता है। फिर दूसरी ये चीज कि जब उसे कभी दुनिया के मामले में खर्च करने की बात आती है तो बहुत हाथ खोल कर खर्च करता है, लेकिन जब उसको अल्लाह के रास्ते में या ऐसी किसी चीज में कि जिसमें उसको आखिरत में रिवॉर्ड मिलना है, तो बड़े हाथ तंग कर लेता है अपने। उनको जब कहा जाता है कि अरे अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करो, किसी की हेल्प कर दो कुछ, तो नहीं नहीं बाबा, हम इतना ही थोड़ी यही करते रहेंगे क्या, बस अल्लाह के रास्ते में ही देते रहेंगे क्या, बीस ही करते रहेंगे, किसी की हेल्प भी करते रहेंगे, कुछ लोग ऐसे कहते हैं। तो ये देखिए कि एक तो खुद तो वो कंजूसी करते हैं, और अगर कोई अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, लोगों की हेल्प करता है, उसके अंदर सखावत अगर होती है, तो उसको रोकने की कोशिश करता है। ये क्या, जब तुम अल्लाह के रास्ते में दे दोगे तो बिल्कुल कंगाल हो जाओगे, फिर तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और देखो ना, फ्यूचर में तुम्हारे बच्चों की शादी भी तो करनी है, एजुकेशन के लिए पैसे रखो, ये करो वो करो, ऐसे ऐसे मशवरे देते हैं लोगों को। खुद तो अल्लाह के रास्ते से रुकते हैं, लेकिन यानी खर्च करने से और दूसरों को भी रोकने की जो है वो हुक्म देते हैं, दूसरे को उभारते हैं इसी तरीके से। नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह ताला बता ले वयक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही, और वो छुपाते हैं जो दिए हैं उन्हें अल्लाह ने अपने फजल से। अच्छा बताइए क्यों छुपाते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने फजल से उन्हें जो कुछ भी अता किया होता है तो वो छुपाते हैं। क्यों छुपाते, बताइए आप।
जवाब दीजिए। कोई मांगेगा इसलिए। वेरी गुड, कोई उनसे सवाल ना कर बैठे। क्या होता है, कुछ लोगों के पास होता है लेकिन वो जाहिर नहीं करते हैं, इसलिए कि अगर हमने जाहिर कर दिया तो दूसरे लोग जो है हमसे डिमांड करने लगेंगे, हमसे मांगने लगेंगे। देखिए कितना अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान की साइको को यहाँ बयान कर दिया, सारी चीजें अल्लाह सुब्हाना ताला ने खोल कर रख दी है। अल्लाह ताला बोले कोई बात नहीं, तुम्हें मैंने जो कुछ अता किया है उसको तुम लोगों से छुपाते हो, मेरे रास्ते में नहीं देते हो, दूसरों की जरूरतों पे तुम खर्च नहीं करते हो, यहाँ तक कि अपना जो है सेविंग कर करके रखते हो, तो कोई जरूरतमंद है तो उसको नहीं देते हो। अल्लाह ताला बोल रहे कोई बात नहीं, वअतदना लिल काफिरीना अज़ाबम मुहीना। देखिए यहाँ काफिर कहा गया है ऐसे लोगों को जो कंजूसी करते हैं, जो कंजूसी करते हैं उनको यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने काफिर कहा है। कोई बात नहीं, इस माल से तुम दुनिया में इज्जत कमाना चाहते हो, लोगों के सामने अपनी शान पेश करना चाहते हो कि लोग जो है आपको बहुत ज्यादा जो है वो बड़ा माने, बहुत मालदार माने, तो ठीक है आ जाओ मेरे पास, तुम्हारे लिए जिल्लत वाला अजाब मैंने जो है वो तैयार कर रखा है। अल्लाह से दुआ करिए अब्बा ऐसे लोगों में हमें शामिल ना करे। देखिए एक बहुत इंसान वाकई एक बहुत बड़ी बेवकूफी ये करता है, क्या सोचता है आज मैंने अगर सेविंग की, पैसे बचा 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 कर रखा मैंने, इन फ्यूचर ये मेरे बच्चों के काम आएगा, इन फ्यूचर ये कुछ ना कुछ मेरे बच्चों का फ्यूचर बनाएगा, कुछ ऐसा काम आएगा वैसा काम आएगा। तो देखिए जिंदगी तो हमारी कभी भी खत्म हो जाएगी, मैं अपने पीछे जो माल छोड़कर जाऊंगी मुझे क्या पता मेरे बच्चे इसका सही इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा ऐसा भी मना किया गया है कि सब कुछ तुम दूसरों को दे दो और खुद दूसरों के सामने हाथ फैलाओ, और ऐसा ना हो कि तुम मलामत करते हुए अपने आप में रह जाओ। इस चीज के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है। बहुत देखिए मॉडरेट रहिए, बहुत ज्यादा बुखल भी मत करिए, बहुत ज्यादा इसराफ भी मत करिए। मुसलमान नाम ही है एकदम मॉडरेट कौम, उम्मत वुस्ता, एकदम दरमियानी कौम है, बहुत ज्यादा इसराफ भी नहीं करती है, बहुत ज्यादा कंजूसी भी नहीं करती है। तो ऐसा जो लोग सोचते हैं कि इन पैसों से मेरे बच्चों का या मेरा कुछ फ्यूचर सिक्योर रहेगा, तो देखिए हमारा फ्यूचर तो जन्नत या जहन्नम, ये तो इंसान पे डिपेंड करता है कि किस चीज को चूज करे और उसके लिए कोशिश करे, उसके लिए मेहनत करे। अगर ठीक है तुमने अपना फ्यूचर जन्नत बनाया है तो उसके लिए यहाँ पर कोशिश करिए, वो ऐसे कुछ काम करिए कि जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दे। तो ऐसी सारी चीजें जो है, ऐसी आयतें जो है वो हमें बहुत ज्यादा गौर व फिक्र पर आमादा करती है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए कि आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये मुख्तालन फखूरा, इतराने वाले और फखर करने वालों के अंदर ये बातें होती हैं। तो मैं अपने आप को चेक करूं, आप अपने आप को चेक करें। देखिए ऐसी आयतों पे दूसरों को मत रखिए। ऐसी आयतों पे अक्सर हमें याद आता है ओहो वो ऐसा करती है, वो वैसा करता है, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है। अपने आप को रख के देखिए क्या मैं ऐसा करती हूँ। क्योंकि देखिए कुरान को समझने के बाद आप दूसरों का नहीं अपना करेक्शन करेंगे पहले। जब आपका अंदर चेंज होगा, आपका जो इंटरनली आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे, आपको किसी को माउथ पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई तुम ये करो ये करो ये करो। आपके अंदर जो एटिकेट्स आएंगे, आपके अंदर आपका जो अखलाक होगा, उससे खुद ब खुद लोग जो है मुतासिर होंगे कि देखो इसकी जिंदगी में कुरान आया तो ये कितने अच्छे अखलाक वाला इंसान बन गया है। तो ये चीज हमारे अंदर आनी चाहिए कि हम चलता फिरता कुरान बने, लोगों को हम चल फिर कर ऐसी इसी तरीके से अल्लाह के कलाम की दावत दें, ना कि उनको बिठा कर मजमुआ जमा करके माइक लेकर हाथ में और ऐसे दर्ज दें। ये पॉसिबल नहीं होता सबके लिए। तो कुरान को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करिए और कुरान को जो है बिल्कुल एकदम अपने अमाल में लाने की कोशिश करिए। ठीक है इंशाल्लाह। आयत नंबर 38 में आगे अभी उनकी बात पूरी नहीं हुई है, अल्लाह ताला बता रहे हैं वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रियाअन नासी वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर। और इनके अंदर ये बात होती है कि वो लोग जो वो खर्च करते हैं अपने माल दिखावे के लिए, ध्यान से सुनिएगा, दिखावे के लिए जो लोग माल खर्च करते हैं अल्लाह ताला बोल रहे हैं उनके लिए भी जिल्लत वाला अजाब तैयार कर रखा है। क्यों? क्योंकि ये माल खर्च करते थे लोगों में अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, लोग इनकी तारीफें करें, लोग इनको बहुत अच्छा माने। और आप में से बताएगा मुझे कोई कि सबसे ज्यादा जो है शो ऑफ
माल जो खर्च होता है वो किस पर होता है? वो अमल जिसमें आपका माल भी खर्च हो रहा है और शो ऑफ भी हो रहा है। शादियों में। शादियों में, वेरी गुड। तो देखिए आप कि शादियों में हमारा माल खर्च हो रहा है, फोकट में तो कोई काम होता नहीं है, फ्रीली तो कोई हमें कुछ काम करके नहीं देता है, खर्च हो रहा है लेकिन शो ऑफ भी हो रहा है ना। तो यही बताया जा रहा है कि जब किसी की हेल्प के लिए कहा जाए या अल्लाह के रास्ते में देने को कहा जाए तो इंसान बहुत बुखल करता है। सारे इंसानों की बात नहीं हो रही है, कुछ लोग जो ऐसे करते हैं। यही अल्लाह ताला बता रहे हैं कि लेकिन जब रियाकारी के लिए माल खर्च करने को कहा जाए तो बहुत फ्रीली होकर जो है वो लोगों को दिखाने के लिए माल खर्च करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों इंसान ऐसा करता है, तो उसका रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है कि वला युमिनु बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर। सबसे पहली बात, उसको अल्लाह पे जो ईमान नहीं है और आखिर के दिन पर ईमान नहीं है। ये बहुत गौर का मकाम है। ये सोचिए कि इंसान जब बुखल करता है और रियाकारी करता है और लोगों को भी जो है वो बखीली करने को कहता है, उसका ये अमल उसको कुफ्र तक ले जाने के लिए काफी है। एक वक्त आएगा कि उसको कोई भी अल्लाह से नाउज़ुबिल्लाह कोई उम्मीद नहीं है, उसको आखिरत से कोई उम्मीद नहीं है, और इस तरीके से वो बहुत ज्यादा जो है वो दुनिया 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 में रहकर सारी चीजें दुनिया के लिए करेगा, और एट लास्ट जो है वो बिल्कुल अल्लाह पर ईमान उसका उठ जाएगा और आखिरत से भी उठ जाएगा। क्योंकि देखिए एक ईमान वाला जो कुछ भी खर्च करता है तो उसको ये उम्मीद होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझसे राजी हो जाएंगे, और दूसरी उम्मीद क्या होती है कि मैं जो कुछ भी खर्च कर रहा हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ये मुझे आखिरत में कयामत में वापस देंगे, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है। फिर इसके बाद अल्लाह ताला बोल रहे वमन यकुनि शैतानु लहू करीनन फसाअ करीना, और जो भी हाँ और जो भी या और जिसका भी हो शैतान साथी, बहुत बुरा वो साथी है। यहाँ पे बताइए कि किसको शैतान का साथी कहा गया है? आयत के आखिर में जो बात आई है शैतान का साथी, और देखिए करीना बेस्ट फ्रेंड, करीना यहाँ पर आया है, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड। जिसका शैतान बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो वो शैतान तो बहुत बुरा दोस्त है, बहुत बुरा साथी है। तो यहाँ पर किसको शैतान का साथी कहा जा रहा है बताइए? जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत पर यकीन नहीं रखते हैं और फजूल खर्च करते रियाकारी के लिए। रियाकारी करते हैं, फजूल खर्च करते हैं। पहली बात तो खर्च नहीं करते, और करे तो दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं कि लोग देखे हमारी तारीफें करे। तो अल्लाह ताला बोले ठीक है, दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया में इज्जत पाने के लिए तुमने ये किया था ना, आओ मैं तुमको रुसवा करने वाला अजाब जो है वो दूंगा। अब देखिए क्या होता है, आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला बता रहे वमाज़ा अलैहिम, और क्या हो जाता है उनको अगर वो सब ईमान रखते अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और वो खर्च करते दूसरों की जरूरत पर। अच्छा, उसमें से खर्च करते जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें दिया है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि वकान अल्लाहु बिहिम अलीमा, तो अल्लाह ताला तो उसको खूब जानते हैं। यानी एक देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों से किस कदर मोहब्बत करते हैं। इस आयत में अल्लाह की मोहब्बत झलक रही है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि काश ये लोग ऐसे होते कि अल्लाह पर ईमान रखते, आखिरत पर ईमान रखते, और उसके साथ साथ जो है मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो दिया उसी से खर्च करते। खुद पर खर्च करने के साथ साथ दूसरों पर भी वो खर्च करते। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं वो कुछ भी करते तो अल्लाह ताला तो जानते हैं ना, कोई चीज छुपी भी तो नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि आप लोगों को दिखा कर किसी की हेल्प करे तो ही अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता चले, नाउज़ुबिल्लाह। आप तो छुप कर भी अगर किसी की हेल्प करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे मैं तो जानता हूँ। तुम छुप कर किसी की हेल्प करो, तुम छुप कर किसी के पीछे खर्च करो, मुझे तो सब पता है। जरूरी नहीं है कि तुम लोगों में शो ऑफ करोगे जब भी मुझे पता चलेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि इंसान असल में, जो इंसान अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, आखिरत पे ईमान नहीं रखता है, तो अल्लाह ताला एक बहुत बड़ी हकीकत का खुलासा यहाँ पे कर रहे हैं कि क्या समझते हो तुम कि तुम्हारे खर्च को, तुम्हारे अमाल को, अच्छे बुरे अमाल को क्या मैं जानता नहीं हूँ? बल्कि
अल्लाह का मामला तो बंदों के साथ ऐसा है, आयत नंबर 40 में जैसा अल्लाह ताला बता रहे हैं, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रा, बेशक अल्लाह नहीं वो जुल्म करता है किसी पर भी जर्रे बराबर। जर्रे बराबर जुल्म नहीं करता है, मतलब इससे क्या है कि तुम जो कुछ भी नेकी करोगे, अच्छे अमल करोगे, तो अल्लाह ताला उसको जाय नहीं होने देंगे। देखिए अपने बच्चों को हमें ये चीजें बतानी चाहिए, समझानी चाहिए। कभी कभी अब देखो बच्चे बहुत बड़ी बड़ी नेकियां तो नहीं करेंगे कि अल्लाह के रास्ते में निकले, इसको दावत दे, उसको दावत दे, तबलीग करे, नहीं। तो बच्चों को छोटी छोटी नेकियां हम कैसे सिखा सकते हैं कि आप अपने आपकी जो क्लासमेट है, क्लास फेलो है, आप उनकी हेल्प किया करो। किसी भी तरीके की उनको हेल्प की जरूरत पड़े, कभी पेन से, कभी पेंसिल से, कभी बुक से, या कभी वो टिफिन नहीं लेकर आए तो इस तरीके से आप उनके साथ अपने टिफिन शेयर करो, इस तरीके से, यानी छोटी छोटी नेकियां। फिर आप उनको ये भी बताओ कि आप बेटा ये छोटा छोटा काम जो करते हो ना, ये अल्लाह सुब्हान तआला सब अपने पास जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको इसका बहुत अच्छा बदला मिलेगा। बच्चों को बदला, जन्नत, नेकी, सवाब ये चीजें नहीं समझ आती हैं, तो बच्चों को ऐसा समझाइए कि अल्लाह ताला वो चीजें जो उन्हें पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप उनको समझा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, क्योंकि आप अल्लाह को खुश कर रहे हो। यानी ऑल ओवर, इन शॉर्ट मैं ये कहूंगी आपसे कि आपकी हर कोशिश के पीछे सिर्फ ये इंटेंशन होना चाहिए, सिर्फ ये नियत होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को अल्लाह सुब्हान तआला से जोड़ दें। क्यों? क्योंकि वो दुनिया के किसी भी कोने में होंगे तो कभी भी आप देखिए आपके बच्चे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप उन्हें नहीं देख रहे, लेकिन उनके अंदर आपको एक बात जो है डालनी है कि अल्लाह सुब्हान तआला देख रहे हैं आपको। कोई बात नहीं आपके पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं तो क्या होगा कि बच्चे के अंदर जब अल्लाह ताला की एक मोहब्बत और एक खशियत, दोनों चीजें जरूरी, देखिए मोहब्बत भी होना जरूरी है और डर भी होना जरूरी है। जब ये दोनों चीजें हमारे बच्चों में आएगी तो आप बिला झिझक अपने बच्चों को कहीं भी भेज सकते हैं, आपके बच्चे इंशाल्लाह कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो ये बचपन से आदत डालिए बच्चों के अंदर कि आप जो भी करते हैं अल्लाह सुब्हान तआला उसको जो है वो वेस्ट नहीं करेंगे। अल्लाह ताला वही बता रहे हैं, व इन तकु हसनतन युदइफा व युति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा, और अगर वो कोई भी नेकी अल्लाह उसे बढ़ा चढ़ा कर देगा, उसके अपने पास से अजर बड़ा अता करेगा। यहाँ पे बात का खुलासा हो गया है। आयतों का रेफरेंस दीजिए बच्चों को, अपनी जबान से मत बोलिए, आयतों का रेफरेंस दीजिए। आपकी देखो अल्लाह सुब्हान तआला क्या फरमा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है इंशाल्लाह। उसके बाद देखिए कि आयत नंबर 40 तक हो गया है। अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा दे, आमीन। अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के ख़ात्मे तक अपना रिज़्क़ कुशादा कर रखना। अल्लाह मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा और मुझे अपने फ़ज़ल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे, आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिज़्क़ तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे क़नाअत और बरकत अता फरमा और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का बदला भलाई के साथ अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। तो अल्लाह
ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔